Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with NJ. Friends, आज है 1st February. Today was a very special day. Remember, today was a Union Budget Day. And I'm sure you might have enjoyed looking at the galloping markets. Let's estimate the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with a trading plan for the next trading day, which will be on 2nd February, right? And we'll be looking at Nifty and Bank Nifty, right? But meanwhile, if you are new to our YouTube channel, friends, do consider subscribing to it and pressing the bell icon such that whenever we upload any new video, you get notification. And of course, be generous to share these videos, which are in hundreds. We have created it for our trading community so that they can get advantage of quality knowledge. Right now, let's look at the stars of today, right? Nifty and Bank Nifty. What a whooping jump, right? The market started with a gap up. Of course, the early morning, the gap up was from the global cues, but you know in the second half, the first half market was range bound. In fact, it was apprehensive about the kind of budget which will be presented by our finance minister Nirmala Sitharaman. Most of the time, people, whenever she comes up with a budget, people are apprehensive about it. But then once she started opening up the budget, and almost within an hour or so, uh, the participants of the market started deciphering that budget, and it started giving a very positive cues. And around 12:30, the market started a huge jump, right? And that you can see in a smaller time frames that it was kind of unbridled market, right? And almost all the sectors moved in green, right? You could see that around 12:30 के बाद में ये एक straight up move आया था, and it was amazing. आज के now if you really look at फार्मा को छोड़ के सारे सेक्टर्स एकदम भागे, और रैली में एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन था क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स थे बैंकिंग सेक्टर्स में, और बैंक लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में एज वेल एज फ्यूचर में. सो जैसे ही मार्केट ने भागना चालू किया और शॉर्ट कवरिंग, इट वाज अ गुड रैली, राइट? वर्थ वॉचिंग. आज की अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर को देखें फ्रेंड्स, तो टॉप कंट्रीब्यूटर से इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, स्टेट बैंक, एनएलएनटी. जो आज के लूजर थे वो थे यूपीएल, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, टेक महिंद्रा एंड हिंद यूनिलीवर. निफ्टी ने स्टार्टिंग में 124 पॉइंट की गेन की, एंड इट क्लोज्ड विद अ नेट गेन ऑफ 647 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 4.74% अप था, and it closed at 14,281. Similarly, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी started with a huge gap of 411 points, and at the end of the day, it gained whooping 2,524 points today. It closed at 33,089, and it closed lifetime high as well as it made a lifetime high today. Overall market की अगर हम bread देखें फ्रेंड तो आज पॉजिटिव रही. 45 stocks advanced while as 5 declined. जो ब्रॉडर मार्केट थे, अगर हम बात करें निफ्टी लार्ज कैप की, तो निफ्टी लार्ज कैप 4.5% अप रहा, मिड कैप ऑलमोस्ट 3.3% अप रहा, एंड स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 2% अप था, राइट? अगर हम ट्रेंड पर्सपेक्टिव से बात करें तो नाइसली एक रिवर्सल दिया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने. बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू किया रिवर्सल को, एंड निफ्टी ने रिवर्सल दिया हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए, राइट? एंड अगर हम बात करें कैंडल्स की, ऑफ कोर्स आई मीन anybody, even a blind person can say that a bullish candle, not only in daily but in weekly also, क्योंकि आज मंडे, और मंडे आज वीक का पहला दिन होता है, तो ऑब्वियसली वीकली में भी एक बुलिश कैंडल बनी, तो एक अच्छा शुरुआत है फरवरी के लिए फ्रेंड्स. अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे कल के जो हमने फ्राइडे को आज के लिए वीडियो बनाई थी, वी हैड सेड दैट लाइक द रेंज इज गोइंग टू बी broad. Trading range is going to be broad, and apart from that, there will be huge volatility of because of the uncertainty of the budget. Nobody had a clue about it, right? तो अगले 2-1 दिनों में भी आपको ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी जब तक कि मार्केट कंप्लीटली सेटल नहीं हो जाती है, राइट? तो रेंज इस बार भी हम आज थोड़ा ब्रॉड रेंज लेंगे. तो अगर हम
सपोर्ट रेंज देखना चाहे तो द फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट वी आर हैविंग इज एट 14,200 and 14,150 is our second range of support. अगर 14,150 टूटता है तो 14,090 and 14,045 is the next range of support. Then उसके बाद में 14,000 of course is our ultimate support downside, right? And अगर निफ्टी कल ऊपर जाती है वापस, it continues northward journey, then 14,329 will be our first level of resistance, which is today's high as well, and 14,400 next resistance है. अगर 14,400 टूटता है फ्रेंड्स तो 14,490 का नेक्स्ट रेंज है, जो कि हमारा हाई है ऑलमोस्ट 25 जनवरी का, राइट? एंड ये अगर हाई टूटा तो देन 14,583, राइट? सो दैट्स द अपर साइड में रेजिस्टेंस लेवल. सो वी कैन से 14,000 टू 14,583 की प्राइस एक्शन से हमको एक रेंज दिखाई दे रही है. Obviously at this point of time I'm looking at a broader range because of the volatility. इंडिया वीक्स अभी बहुत गिरा नहीं है इसके लिए, राइट? सो अगर हम बैंक निफ्टी को देखें फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी के पास में जो अवेलेबल सपोर्ट है डाउन साइड में, सिंस इट क्लोज्ड एट 33,089, तो 32,842 is our first level of support. Second level of support जो हमको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स वो है 32,730 में, which is a Fibonacci number, right? And today the 61% Fibonacci from this low, right? एक मिनट, sorry, this is a 61% Fibonacci of this low to this high. तो ये हमको एक सपोर्ट का काम करेगा कल. अगर मार्केट नीचे, अगर बैंक निफ्टी नीचे आती तो 32,570 इज अ प्राइस एक्शन सपोर्ट लेवल, एंड 32,382 अगेन इज आर 50% फिबोनाची लेवल, राइट? सो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल का, एंड 20 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा. अगेन दैट इज फ्रॉम प्राइस एक्शन. अगर फर्दर गिरावट होती तो देन 32,100 डाउन साइड में हमारे पास में रहेगा. वैसे लुकिंग एट द टेम्परामेंट ऑफ बैंक निफ्टी, चांसेस कम है इतना नीचे मार्केट के आने के, राइट? बैंक निफ्टी के नीचे आने के लिए. ना अगर बैंक निफ्टी कल अप मूव कंटिन्यू करती फ्रेंड्स तो 33,297 जो कि आज का हाई है, वो हमारा पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है. सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास 33,572 which is close to, you can say around 290 points ऊपर है, right? And अगर ये लेवल टूटेगा तो then 33,750 and 34,000 हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा. सो वी कैन से रफली अगर प्राइस एक्शन पकड़े विद द हाई वोलेटिलिटी टुमारो, 32,100 से लेके 34,000 की रेंज हमको यहाँ पे दिखाई दे सकती है बैंक निफ्टी में, राइट? ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द सेशन विल बी लुकिंग एट इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आफ्टर considering what data points are talking about. So when we talk about the data points, first we are looking at ऑप्शन चेन डेटा, राइट? सो निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की बात करते हैं फ्रेंड्स. तो निफ्टी आज क्लोज हुई है 14,281 में. सो 14,300 को हम एट द मनी कंसीडर करेंगे, और उसके आसपास में देखेंगे कि बुल्स एंड बेयर्स ने किस टाइप के पोजीशन बनाए हैं. सो 14,300 which is a little above than the closing price. You can see that there is a good पुट राइटिंग. ऑलमोस्ट 8,300 कॉन्ट्रैक्ट्स आए और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट इफ द प्राइस गोज बिलो इट, above it, right? तो रियल सपोर्ट हमको जो पहला नजर आ रहा है फ्रेंड्स वो आ रहा है 14,200 पे. 14,200 पे you could see 23,787 contracts fresh आए हैं. Now earlier we used to talk about these number of open interest in a million friends, but in the new website of NSE, instead of number of shares it is a number of lots. तो इसको आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो you can get the numbers which are exhibiting in the new website, the old website of NSE, right? So effectively they are the same numbers, right? क्योंकि निफ्टी 75 के लॉट में है, इसके लिए नंबर छोटा हो गया है. सो दिस इज इमर्जिंग 14,200 इज इमर्जिंग एज अ सपोर्ट 1 फॉर अस. एंड उसके बाद में नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो हमको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं 14,100 पे. एंड अगर ये लेवल टूटता है तो देन नेक्स्ट लेवल है हमारे पास में
14,000 का, राइट? यहाँ पे ऑलमोस्ट 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश आए हैं और 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरऑल हैं. So this will act as a support 3, and since this is also maximum open interest strike price, we'll consider that as a final support downside, right? वैसे होने के लिए 13,500 में, but 13,500 ये तो hedging वालों की position है, it is not the immediate support, काफी नीचे साइड का support है, right? So now let's look at what kind of positions are created by bears. So bears क्या करते हैं? वो call write करते हैं. Bulls क्या करते हैं? वो put write करते हैं, right? So now अगर हम आज 14,300 की बात करें, which is tad above than the closing price of today, तो यहाँ पे almost 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स. So this will work as a resistance 1 for us, right? So अगर ये लेवल टूटता है, इसके बाद में हमारे पास में जो सेकंड रेजिस्टेंस का लेवल आता है फ्रेंड्स, दैट इज 14,400. अगर 14,400 टूटता है तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास में 14,500 का, राइट? यहाँ पे ऑलमोस्ट 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 4,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स आए. अगर आप देखेंगे तो आज बेयर्स ने काफी पोजीशन की अनवाइंडिंग की है. डेफिनेटली इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद में तो हिम्मत तो टूटनी थी, राइट? सो this is very much visible, but then still they have not lost the hopes. They have been writing calls at higher levels, right? And इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो 14,600 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, 14,700 पे, 14,800 पे, ऑलमोस्ट ऑल लेवल पे कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है हमको यहाँ पे, राइट? सो 14,500 on upper side and 14,000 on a lower side seems to be our trading range from the डेटा पॉइंट, राइट? एंड 14,500 हमारा मैक्सिमम ओआई यहीं पे बिल्टअप हुआ है, राइट? तो ये हम नोट करते. नाउ अगर फ्रेंड्स इसका हम ऑप्शन चेन देखें, पीसीआर देखें इस ऑप्शन चेन सीरीज का, तो अगर हम 5% स्ट्राइक रेट अप और डाउन का पीसीआर निकालेंगे तो 0.85 आता है, और अगर हम 10% पीसीआर का 10% स्ट्राइक का पीसीआर निकालेंगे तो दैट विल कम अराउंड 1. सो दैट गिव्स मी अ काइंड ऑफ न्यूट्रल बायस, राइट? बट ओवरऑल अगर हम इसका पीसीआर निकालना चाहें तो इट इज लाइक you can see that puts are almost 1.1 times more than calls, right? So that's a bullish bias. So we can say that ये जो है neutral to पॉजिटिव बायस दिखा रहा है, राइट? अभी इतनी बड़ी मूव होने के बाद में डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कल आपको देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल यहाँ पे बायस हमको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, राइट? नाउ अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी का भी डेटा आपको मोर और लेस सिमिलर कहानी बता रहा है. बैंक निफ्टी की लेकिन ट्रेडिंग रेंज आपको बहुत लंबी चौड़ी नजर आएगी. सिंस 30,100 के आसपास में हमारा एट द मनी है, तो उसके आसपास में हम देखेंगे कि हमारा बिल्टअप कहाँ पे है, राइट? सो पुट साइड में अगर आप देखेंगे बिल्टअप जो स्ट्रॉन्ग बिल्टअप है वो हमको दिखाई दे रहा है 32,000 में यहाँ पे, जहाँ पे कि 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट? उसके अलावा ऑफ कोर्स 32,500 में भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, और 33,000 में भी ऑलमोस्ट जिस स्ट्राइक पे हम खड़े हैं उससे नीचे भी पुट राइटिंग अच्छी हुई है, राइट? बट काफी वाइड दिख रहा है, सो दैट सेज कि भाई वोलेटिलिटी कल ज्यादा हो सकती है बैंक निफ्टी में, राइट? And not only on the support side, you can say on the resistance side also, almost 33,000 पे भी आपको 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स स्टिल दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट? जबकि मार्केट इसके ऊपर है. सो दीज बेयर्स आर थिंकिंग दैट द बैंक निफ्टी में कम डाउन बिलो इट. एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वो 33,500 पे दिखाई दे रहा है, या फिर 34,000 पे दिखाई दे रहा है. 34,000 पे हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है ये, राइट? एंड ये मैक्सिमम 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ही है, 34,000 की स्ट्राइक पे. सो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि भाई 32,000 से 4,000 की जो हमको यहाँ पे रेंज दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट अप और डाउन. सो स्टिल मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, एंड इसका जो पीसीआर है 5% का ऑफ कोर्स अगेन कम है. व्हाई वी आर कंसीडरिंग 5% पीसीआर इज बिकॉज बहुत
फार ऑफ की जो या आउट ऑफ द मनी की कॉल या पुट्स हैं उनकी रेलेवेंस बहुत कम होती है, बट ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.4 टाइम्स ओवरऑल पुट का कंसंट्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो दिस ऑल्सो शोज अ न्यूट्रल टू बुलिश बायस इन बैंक निफ्टी, राइट. सो दिस इज व्हाट ऑप्शन चेन डेटा इज टॉकिंग अबाउट. हाँ, इसके अगर हम ट्रेडिंग प्रेशर की बात करें तो FIs are neutral, pros and retailers are bullish at this moment, of course. And since DIs are not allowed to sell the calls or puts, so they are only hedging their position by buying puts or calls as and when the market demands that. अगर हम index के future की बात करें friends, तो FIs are very bullish with a trading pressure of almost 2.5, while the pros and retailers are neutral, pros are very bearish, and DIs are net short in future of Nifty and Bank Nifty. Now, अगर हम provisional data FIs की बात करें तो after being a bearish in last 3-4 sessions, FIs today became bulls. They bought 1,494 worth equity in cash market, while as the DIs were kind of neutral. They sold almost, I mean, effectively 90 crore के आसपास में उन्होंने कैश मार्केट में इक्विटी बेची. सो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है. सो आज थोड़ा पासा वापस से पलटा है. Otherwise, last few days में you were seeing that DIs had become net buyers, right? So if you look at European or US market or Asian markets, they are correcting, consolidating, but with a bullish bias as of today, right? By the time I'm making this video. Now, अगर हम intraday trading plan की बात करें, in this kind of rising market, again the policy is buy on dips, sell on rise. So sell on rise का तो अभी इमीडिएट नहीं आया मौका. सेल ऑन राइज जैसे बैंक निफ्टी में एक बार फिर भी बोल सकते हैं सेल ऑन राइज होएगा, बट पहले बाई और डिप में तो होना चाहिए. पहले आपके पास में माल तो होना चाहिए कि आप हायर प्राइस पे बेच पाओ. बट निफ्टी को पहले ये डबल टॉप क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद में हम फिलोसफी बना सकते हैं. सो एज ऑफ नाउ इट विल बी बाय ऑन डिप्स, राइट. आज की अगर आरएसआई की बात करें फ्रेंड्स, तो आरएसआई ऑलमोस्ट 55 के आसपास में तो न्यूट्रल है, नीदर बुलिश नॉर बेरिश फॉर निफ्टी. एंड ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में आरएसआई 64, so it's already turned bullish. India Wix, however, has not fallen much today. It fell by 8%, but still it is 23.32. So that's not a good news for the bulls, क्योंकि market को bullish होने के लिए India Wix at least 18-19 के range में होना चाहिए at this point of time. Although even that is also much higher than the normalized markets where it is generally 12.5 to 14.5, right? So market को अगर हम daily इसमें देखें daily time frame में, तो it is close to ओवरसोल्ड जोन. सो थोड़ा बहुत बाउंस बैक आपको फिर भी मिल सकता है. ऑन अ वीकली इट इज इन द न्यूट्रल पोजीशन, नीदर ओवरबॉट नॉर ओवरसोल्ड, बट मंथली में अभी भी ओवरबॉट जोन में है. सो आपको किसी भी डायरेक्शन में छोटा मोटा मूव मिले, दैट शुडंट सरप्राइज. दैट मींस अ बाउंस बैक एज वेल एज एनी रिट्रेसमेंट शुड नॉट सरप्राइज यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, right? As long as market 14,000 को maintain कर रही है, उसके ऊपर रह रही है, it is bullish and it will be marching towards 15,000. So swing traders can of course take a position, but with a huge risk, right? Huge risk क्यों? 14,281 पे अगर आपका at this point of time, if you look at your risk, that would be close to 275 to 300 points का risk होएगा, right? So that's where swing trader के लिए थोड़ा सा risk to reward ratio may not be favorable, but yes, opportunity उनके लिए long जाने की swing trade में है, right? And you remember that I had said after budget wait until the budget, and budget के बाद में breakout की philosophy आप follow कर सकते हैं swing trade के लिए, right? And now the trading range for next trading session, that's on 2nd of February. निफ्टी में जो हमको ट्रेडिंग रेंज दिखाई दे रही फ्रेंड्स, वो दिखाई दे रही 14,000 से 14,550 की, based upon the data and price action. For bank nifty we are seeing 32,500 to 34,000 with mild bullish bias, and of course with a high volatility थोड़ा नीचे आने में यहाँ पे time lagega. Now let's look at a smaller time frame, how we can trade bank nifty and nifty in a intraday, right? As the bias is bullish, so agar market gap down start hote hain, so you might see attraction to pull the market upside. And agar market gap up start hote hain, so you need to patiently
वॉच फॉर द इनपुट्स। तो इनपुट्स क्या आते हैं फ्रेंड्स, आपको इनपुट अलग अलग इंडाइसेस से मिलेंगे, आपको इंडिया विक्स से इनपुट मिल जाता है, यूएसडी एनआर के चार्ट से इनपुट मिल जाता है, ऑप्शन चेन के डेटा से इनपुट मिल जाता है, राइट। सो लेट्स लुक एट हाउ यू वुड बी एबल टू ट्रेड निफ्टी फर्स्ट, राइट। सो निफ्टी 14,200 से 14,350 के रेंज में रेंज बाउंड एंड वोलेटाइल रहेगी। सो इसको अवॉइड करें, या अगर इसको ट्रेड करना है ये रेंज में, देन हाफ एन आवर वेट करें, मार्केट ओपन होने के बाद में ओआरसी ब्रेकआउट होने दें। और ओआरसी ब्रेकआउट होके अगर सस्टेनेबली ब्रेकआउट होता है अपसाइड या डाउन साइड, you can trade it with a stop loss, right? Of course, your trading strategy, maybe VWAP or super trend, should also give you the signal to buy or sell it in whichever direction the market then starts moving. Now when I say sustainably breakout होना चाहिए, that means breakout होने के बाद में प्राइस को जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है एटलीस्ट 20-25 मिनट सस्टेन करना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल ब्रेकआउट। अदरवाइज कई बार फॉल्स ब्रेकआउट निकल जाते हैं। नाउ अगर मार्केट 14,400 के आसपास में या 14,350 के आसपास में स्टार्ट होके बुलिश बायस के साथ में जाती, तो देन यस 14,400 14,490 शुड बी योर, या 14,500 कुड बी योर टारगेट ऑन द अपसाइड। एंड अगर मार्केट लेट्स से 100-150 पॉइंट के आसपास में ओपन होके आपको बेरिश बायस दिखा देती है, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है फ्रेंड्स 14,400 या 14,329 या ये सपोर्ट लेवल बनेंगे, एंड ये आपके टारगेट भी बन जाएंगे। नाउ कंसीडर अगर मार्केट गैप डाउन स्टार्ट होती है 14,000 के लेवल पे, या 14,090 के लेवल पे, या 14,250 के लेवल पे, देन यू विल गेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा बेस बना हुआ है, राइट। तो ये एरिया में अगर मार्केट स्टार्ट होती है, देन यू शुड बी लुकिंग फॉर bullish breakout, and with the help of your trading strategy you should be going long in Nifty. Now let's look at what kind of opportunity could be there in Bank Nifty. Bank Nifty definitely Nifty से अभी bullish है, right? Banks are bullish, and you have seen that how finance minister has said that there will be enough liquidity, that they will be um, uh, providing enough liquidity to the banks. That's where the banks are rallying, right? Now अगर हम बात करें 32,840 से लेके 33,300 के रेंज की, सो ये रेंज में थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। ओआरसी ब्रेकआउट होने दें, हाफ एन आवर वेट करें, एंड उसके बाद में सस्टेनेबली ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड करें। हाउएवर बैंक निफ्टी अगर 32,600 32,500 की रेंज में ओपन अप होती है, तो इन दैट केस यू माइट लुक फॉर अ बुलिश ब्रेकआउट, एंड वंस द बुलिश ब्रेकआउट इज कंफर्म्ड, उसके बाद में आप उसको लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। एंड 32,850 33,100 33,300 33,570 should be your long side targets. Now, in case बैंक निफ्टी अगर गैप अप स्टार्ट होती है 200-300 पॉइंट के साथ में, then you might witness some profit booking by DIs. In such a case, what you would do, you would look for downside ORC breakout with a rising volume. मैं जब ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं, ब्रेकआउट शुड बी सस्टेनेबल एंड विद अ राइजिंग वॉल्यूम। दैट्स द वे यू कैन ट्रेड बैंक निफ्टी or Nifty or any asset class for that matter, right? Without rising volume, do not. And when you are going long, your RSI should be above 70. जैसे अगर हम यहाँ बात करें आज, तो हमको RSI करीब करीब सुबह से ही 60 के ऊपर था, और जैसे ये ब्रेकआउट मिला, इट वाज अ सस्टेनेबल ब्रेकआउट, राइट। तो इनफैक्ट ये ब्रेकआउट की बात अगर हम करेंगे, या ओआरसी ब्रेकआउट की बात करेंगे, विच वाज एट 31,120 के आसपास में, तो फिर ये सस्टेन हुआ यहाँ पे, राइट। कितना, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा, उसके बाद में इसने जंप मारी, एंड यू कुड सी दैट RSI वाज अबव 60, right? So that way you can trade Bank Nifty as well. However, volatility Bank Nifty as well as Nifty दोनों में रहेगी, इसके लिए आपको केयर करना जरूरी है, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। एंड इफ यू आर स्केर्ड ऑफ द मार्केट, होल्ड अ डे और टू, within a day or two market will be again becoming a trendy, and by then India VIX would fall down below 20, I believe, right? Once that is done, then you would see either it will rise or it will fall. मेरे ख्याल से it should fall now, because जो uncertainties थी वो
clear हो गई हैं. Main uncertainty was for FIs, as they were thinking of the new techs maybe hitting their profits, but now they have understood today. That's where they became buyer, that the new tax regime is not going to be impacting their profitability, as tax में कुछ भी government ने changes नहीं किए हैं, right? So markets, like it seems that markets are ready for the next bull move, and we should be able to ride this with proper stop loss. And if you are in profit, friends, keep on trailing your stop losses such that you can lock your profits, right? Of course, markets are uncertain and volatile. You should trade professionally. You should hedge your positions, right? And they may turn hostile anytime. So in such a case, as a professional, it becomes important to hedge your positions and trade carefully. And for those of the people who are investors, of course, you should remain uh, invested, not worrying about day-to-day volatility. At the end of the day, market would move upside. Valuations are quite okay now, as India VIX, you could see, has already fallen close to 30. Nifty P has fallen close to 38 now. Right, it was 36 on Friday. So, friends, with this analysis, I hope you guys are getting a good vibe of the market. You are able to trade it profitably. Thank you very much for watching the video. To get latest information or latest videos, do subscribe this channel and don't forget to press the bell icon. Do write in the comment box of the video, friends, what kind of support you are looking for more, what kind of videos you would like us to make, such that we can contribute more to our trading and investing community. This YouTube channel has been created for supporting you, right? So your comments are most welcome. Thank you once again for watching and liking the video. Please share the video with your friends and trading community such that others also get benefited from quality knowledge. Good luck, happy trading, happy investing, friends.